नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने तोगड़िया नु आ राज्य नहीं। कल आए थे मेरी ऑफिस में वो 4 बच्चे जिनको बड़ौदा में गणेश की वो जो प्रोसेशन जा रहा था, वो रात को 3 बजे अंडे डाले उन्होंने। अब उन्होंने बताया कि सर अंडे डालने का छोड़ो, हम तो उस जगह पे थे नहीं, सो रहे थे। और कैसे उस मुसलमानों को गैंग जाहिर किया, पूरा बांध के 6 किलोमीटर रिक्रिएशन के नाम पे चलाया गया। 6 दिन तक मारते रहे मारते रहे मारते रहे। कन्फेशन करवा लिया, इन्होंने अंडे तो हमने ही डाले। 550 मुसलमानों को ज़बरदस्ती से बांग्लादेशी कह के यहाँ से बांग्लादेश में छोड़ दिया गया। आज के दिन सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का ये प्रोग्राम चल रहा है। 42 आरटीआई एक्टिविस्ट जो जेन्युइन एक्टिविज्म में है वो जेल में है। ये उम्मीदवार का कई गाँव में हटाए गए और वहाँ तक वेरावल तक कई गाँव में मुसलमानों के हटाए गए, हिंदुओं के कोई गांव नहीं हटाए गए हैं। वो भी गैरकानूनी तरीके से वहाँ नागरिक रहते हैं, लेकिन ना वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है, ना वहाँ पे उनको कोई हटाया जा रहा है। और ये जो डिवाइड है, अब ये गुजरात इज अ लेबोरेटरी, ये वगैरह छोड़ो, लेबोरेटरी छोड़ो, अब तो पूरा हिंदुस्तान लेबोरेटरी हो गया है। Must accept that we have failed to attract youth, and when we are speaking about Jayaprakash ji, we have to think about the youth who will carry forward his legacy. તમે ને હું તો તમારા ને મારા પગ તો અડધા તો કોફીનમાં છે અને અડધા સ્મશાનમાં છે। એટલે સવાલ એટલું જ છે કે આ લોકશાહીને સંવિધાનના મૂલ્યોમાં કોણ આગળ લઈ જશે એની મને ખબર નથી। અને 20 વર્ષ પછી અહીંયા બેઠેલા બધા જ ભગવાનને ઘેર જતા રહ્યા છે। ત્યારે આ લોકશાહીનું 100 વર્ષ પછી શું થશે? 2047નું નરેન્દ્ર મોદીના સ્વપ્નને તો બાજુમાં મૂકી દઈએ, પણ એક વસ્તુ સ્પષ્ટ મારે કહેવાની કે PUCL ગુજરાતનું અધ્યક્ષ છું, મને એમાં પણ કશું દેખાતું નથી। નેશનલ એલાયન્સ ઓફ પીપલ્સ મુવમેન્ટ, એમાં પણ કશું દેખાતું નથી। લોકો આવે છે, વ્યક્તિગત પોતાના કાર્યોની ચર્ચા કરે છે, અને આ સિટીઝન ફોર ડેમોક્રેસીની અંદર આ વડીલોને ખોટું લાગે તો મને માફ કરજો, પણ એમના આત્મામાં જ હું વસું છું। સવાલ એટલું જ છે કે આ પ્રસંગની અંદર અમદાવાદની અંદર NID નો કોઈ વિદ્યાર્થી છે? ના। IIM નો કોઈ વિદ્યાર્થી છે? ના। અમદાવાદ યુનિવર્સિટીનો કોઈ વિદ્યાર્થી છે? ના। ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટીનો વિદ્યાર્થી છે? ના। નિરમા યુનિવર્સિટીનો કોઈ વિદ્યાર્થી છે? કોઈ 10 વકીલો છે અહીંયા? નથી। આ સામૂહિક નિષ્ફળતા છે મારી, તમારી અને મંચ પર બેઠેલા સંગઠન, અને એ સૌથી વધારે સમસ્યાજનક છે જેને આપણે પોતાને ડીલ કરવાનું છે કે તમે આવનારી પેઢીને જો તમે ભૂતકાળ અને વર્તમાન શીખવાડી નહીં શકો તો પછી 2047 તો શું, 2097 સુધી પણ સરકારનું પરિવર્તન થવાનું નથી। 1 2 આ સૌ લોકોનું મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલના આ રાજ્યની અંદર હું આવકાર કરું છું। નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ અને તોગડિયાનું આ રાજ્ય નથી। વકીલ તરીકે લોકશાહીને હું કેવી રીતે જોઉં છું તો કોર્ટની અટારીઓમાંથી કેટલાક પ્રસંગો છેલ્લા 10 15 20 વર્ષની અંદર થયા હોય અને એને આધારે લોકશાહીને તમે કેવી રીતે મૂલ્યો છો, એ એક પરીક્ષાનું માધ્યમ હોય છે। માર્ક ગેલન્ટર કરીને એક બહુ જ મોટા પ્રોફેસર છે, એક બાજુ એ કાયદો શીખવાડે છે અને બીજી બાજુ એ પોલિટિકલ સાયન્સ અને સોશિયલ સાયન્સ શીખવાડે છે। એમણે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદરના કેટલાક જજમેન્ટોને આધારે કોમ્પિટિંગ ઇનઇક્વાલિટીઝને આધારે પુસ્તક લખ્યું હતું, અને એ મને હંમેશા પ્રેરણા આપે છે કે લોકશાહીની પારાશીશી એ ફક્ત સંસદની અંદર નહીં પણ લોકશાહીનો એક પાયો ન્યાયતંત્ર છે, તેમાં શું થાય છે, લોકો અને સરકારની વચ્ચેને ન્યાય કેવી રીતે અપાય છે, એ પણ એક પારાશીશી છે। એમાંના કેટલાક 9-10 નમૂના, અને એને આધારે આપણે નક્કી કરવાનું કે આપણે આ સ્વતંત્ર ભારતની અંદર પરતંત્ર લોકો માટે કેટલી વધારે મજબૂતાઈથી કામ કરવાની જરૂર છે। નંબર 1, કારગિલ પછી એના શહીદની વિધવાએ મુન્દ્રામાં અદાણી SEZ ની જમીનની પાસે પેટ્રોલ પંપ માટે જમીન માંગી, અને એ વિધવાને કહેવામાં આવ્યું કે
તને જમીન તો ચોક્કસ આપીશું બેન, કારણ કે તે કારગિલના યુદ્ધમાં તમારા પતિને તમે ખોયા છે અને ભારતનો એક શહીદ છે, એના કુટુંબને અમારે આપવાની અમારી નીતિ છે. પણ તમારે 32,000 રૂપિયા પર સ્ક્વેર મીટરના ભાવથી તમારે જમીન ખરીદવી પડશે. એટલે કારગિલની વિધવાએ એવું કહ્યું કે સાહેબ મારી બરોબર બાજુમાં અદાણી SEZ ને તમે 3 રૂપિયા પર સ્ક્વેર મીટરની જમીન આપી છે, તો મને તમે 32,000 રૂપિયા પર સ્ક્વેર મીટરની જમીન ક્યાંથી આપો છો? એટલે 3 રૂપિયા એ ઉદ્યોગપતિને અને 32,000 રૂપિયા પ્રતિ स्क्वायर मीटर જે છે તે कारगिल विधवा ने તમે जमीन आपवा मांगो છો. हाँ, कारगिल की विधवा को कहा गया कि आपको 32,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर जमीन देने के लिए हम तैयार हैं. तो उसने ये कहा कि अरे ठीक बाजू में अगर जो जमीन है वो तो अदानी SEZ की है, उसको 3 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर जमीन दी गई है. ये कौन सा न्याय है? तो सरकार ने कहा कि देखिए जी, उद्योगपति अदानी के द्वारा जब इस एरिया में कोई नहीं जाता था, तब 80 के दशक से आज तक उन्होंने प्रगति की है. इस एरिया के दाम बढ़ गए हैं, तो अब वो बढ़े हुए दाम को ध्यान में रखकर हम आपको जमीन देना चाहते हैं, आप जरूर पेट्रोल पंप वहां बनाए. वो बात थी कारगिल की. आज तक वो पिटीशन वहीं पड़ी है. वो विधवा भी चली गई, वहीं ऊपर जहां शहीद चले गए उनके बेटे मैटर लड़ रहे हैं, और वो जमीन आज तक उस फैमिली को नहीं. दूसरा प्रसंग, ये क्रोनी कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं. मैं तो ना वो कम्युनिस्ट हूं, लेकिन क्योंकि पिताजी अच्युत याग्निक वो समाजवादी परंपरा से जुड़े रहे, तो सुनते आया हूं. पढ़ने का तो ज़्यादा शौक नहीं था, इसलिए संविधान को फॉलो करना जानता हूं. उसके अलावा ये जो आइडियोलॉजिकल रूटेडनेस है तो मेरे में शायद नहीं है. अदानी को ज़मीन दी गई, अदानी ने ड्रेजिंग किया. वो जो लाइट हाउस होती है जिसको हम दीवा दांडी कहते हैं, वो हमेशा समंदर के किनारे होती है. वो 3.5 किलोमीटर अंदर चाहिए. इसका मतलब ये कि समंदर में मिट्टी से लेके डाल डाल के 3.5 किलोमीटर तक वो जमीन को नहीं बना खड़ी करते रहे. और फिर उसको सर्वे नंबर के माध्यम से स्वीकारा गया. कहा था कि भाई पहले सर्वे नंबर नहीं था, और 1 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर जमीन दी गई. फिर वो जमीन लीज पे दी गई. जमीन अदानी ने जब ONGC को, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट, क्योंकि एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द स्टेट हैं, तो उनके खिलाफ तो हाईकोर्ट में पिटिशन भी हो सकती है. जब ONGC ने और OIL ने कहा कि इतना ही बड़ा SEZ हो रहा है तो हमें ज़मीन चाहिए, तो 1 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर जमीन लीज पे सरकार ने अदानी को दी थी. ONGC को सिर्फ 2,600 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर दी गई, और किसी ने कुछ बोला नहीं. ये दस्तावेज है, आज भी मेरे पास है. अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए काफ़ी लेके गए, टॉफ़ी के दाम पे या 1 रुपये के दाम पे. उसके बाद में कभी मिलने के लिए नहीं है. देवभूमि द्वारका की बात करते हैं. अभी कुछ 1 साल पहले हमारे मित्र हैं जो वहाँ पे गए थे, जमीयत और बाकी के जो संगठन है उनके माध्यम से. तो देवभूमि द्वारका में भगवान कृष्ण को मुसलमानों से मुक्त करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मछुआरे हैं, तो ये कहा गया कि ये लोग तो गैरकानूनी तरीके से रहते हैं, ये ज़मीन के मालिक नहीं हैं, ऐसे ही आके रह गए. एंड इन द एफिडेविट इट इज स्टेटेड कि दे आर सिक्योरिटी थ्रेट, यानी मुसलमान जहाँ रहता है अगर समंदर के किनारे तो शायद सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है. और ये लोगों को निकाला गया. और हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर हर्ष संघवी कहते हैं हमने तो कन्हैयाओं को काफिरों से मुक्त किया है. क्या बात है, ये है डेमोक्रेसी. अब वो 240 फैमिली वहाँ रहते थे, 16-17 फैमिली हिंदू के भी थे जिनको निकाला गया बिकॉज दे वेर एनक्रोचर्स. साथ बात तो सही है कि अगर ज़मीन की मालिकी आपकी नहीं होती है और सरकार की होती है, और अगर आप वहाँ
सालों से रहते हैं, तो इस देश में ये एंटाइटलमेंट की समस्या बड़ी होती है और सरकार की ज़मीन क्या लोगों की नहीं है उसके बारे में बहस चलती रहती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आपके पास में कागज़ नहीं होते हैं, आजकल तो कागज़ दिखाने का ज़माना गुजरात में भी आने वाला है, कागज़ नहीं होते हैं ज़मीन के तो फिर आपको निकाला जाएगा। उसके बारे में जब लिटिगेशन किया गया कि भाई आप इनको रिहेबिलिटेट करें बिकॉज आप यहाँ से निकाले तो वहीं जाएं, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर याग्निक, डू यू वांट टू पे प्रीमियम टू दोज हु हैव बीन स्टेइंग इलीगली ऑन द लैंड दैट बिलोंग्स टू द स्टेट। यानी हाई कोर्ट ये कहती है कि इन लोगों को आप अगर कहते हैं रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट दी जाए, इसका मतलब कि यू वांट टू पे प्रीमियम टू देम। ये हाई कोर्ट की संवेदना है, लेकिन ये जजमेंट में नहीं आता। इसलिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सनातनी को अगर मुक्त करना चाहते हैं तो उसमें किसी को समस्या नहीं होती, लेकिन शायद आनंद याग्निक यहाँ बोलेगा तो कहीं कंटेम्प्ट तो जरूर हो जाएगा। होने दो, अब उसकी परवाह नहीं है, बहुत हो गया। तीसरी बात, अदानी SEZ में 27 गांव है, 2600 एकड़ उनकी ज़मीन ली है। वो 2600 एकड़ ज़मीन जो है, 2600 एकड़ ज़मीन को छुड़ाने के लिए बहुत सारे लिटिगेशंस हुए हैं। अदानी ने 2014 में सरकार बदली, उससे पहले कहा था कि मैं ज़मीन वापस दूंगा। 2015 में सरकार आई, उसके बाद में शर्त भी बदल गई और गौचर वहीं रही। ऐसे तो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री की 3 माता है, अपनी खुद की माता जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, गंगा मैया और गाय मैया। ये गाय मैया अदानी SEZ के वो 2600 एकड़ के गौचर में कहाँ चली जाती है, उसका जवाब तो कहीं नहीं मिलता। और सरकारें बदलती हैं तो शर्तें भी बदल जाती हैं। ये हमारी लोकशाही है। देवभूमि द्वारका की बात करें, 2 बड़े गांव, हमारे कुछ मुसलमान मित्र हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं और यहाँ बैठे हैं। मुझे फ़ख्र है कि वो लोग जब जब ऐसा होता है काम करते हैं और अपनी कौम नहीं भारत की है समझ के, वो उन भारतीय नागरिकों को समझ के, क्योंकि मुसलमान है वो समझ के नहीं, लेकिन क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है ये समझ के उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। देवभूमि द्वारकानी अंदर छेक वेरावળ સુધી 11 ગામો છે કે જેની અંદર મુસલમાન નાવિકો છે અને ત્યાં આગળ જેટી પણ છે, લેજિટિમાઇઝ જેટી પણ છે। અને एक ज़माने में तय हुआ कि कहाँ रहेगा नाविक, कहाँ रहेगा, जो फिशरमैन है कहाँ रहेगा, वो तो समंदर के किनारे रहेगा। लेकिन समंदर के किनारों को गांव में नहीं गिना जाता, इसलिए वो ज़मीन पे रहते हैं। दे आर विद इन द CRZ एरिया और उसकी मालिक किसकी होती है, तो सरकार की होती है। आजकल उनको हटाने का शुरू हुआ। हमारे अजीत दोवल साहब जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो आए, उन्होंने पूरा दौरा किया गुजरात के 1700 किलोमीटर समंदर का किनारा, और ये जहाँ जहाँ मुसलमान मछुआरे हैं अकेली तादाद में रहते हैं उनको हटाया गया। सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, पिटिशन वहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन आज तक उनको रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट नहीं मिला। नाउ इफ देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट then the state has its own obligation to meet with it। और ये इतने सारे गांव हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, द्वारका, ग्रेट द्वारका जहाँ लोगों को हटाया गया, देवभूमि द्वारका कई गांव में हटाए गए, और वहाँ तक वेरावळ तक कई गांव में मुसलमानों के हटाए गए, हिंदुओं के कोई गांव नहीं हटाए गए हैं। वो भी गैरकानूनी तरीके से वहाँ नाविक रहते हैं, लेकिन ना वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है, ना वहाँ पे उनको कोई हटाया जा रहा है। और ये जो डिवाइड है, अब ये गुजरात इज अ लेबोरेटरी ये वगैरह छोड़ो, लेबोरेटरी छोड़ो, अब तो पूरा हिंदुस्तान लेबोरेटरी हो गया है। बट दिस इज अ वेरी सीरियस इशू वेयर द फिशरमैन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। दे आर बीइंग थ्रोन फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, एंड टाइम हैज़ कम फॉर अस, बिकॉज ये 10,000 से ज़्यादा तादाद के फिशरमैन हैं, उनको आज तक गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन के बावजूद भी न्याय नहीं मिला। ये डेमोक्रेसी है। अब लोकल अथॉरिटी के चुनाव आ गए, कांग्रेस तो है ही नहीं, जिसने आपातकाल जाहिर किया था वो अपने काल के लिए और अपने अस्तित्व के लिए आजकल बहुत बड़ी समस्या में है। लोकल अथॉरिटी के चुनाव के वक्त 40 से ज़्यादा
कांग्रेस के और दलित और पददलित नेताओं को गुत्सी टोक में प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे एक्सटर्नमेंट तौर से अपने एरियाओं से निकाला गया। अब आप सोचिए कि गुत्सी टोक इज अ लेजिस्लेशन विच इज मेंट फॉर डीलिंग विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बाय ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट एंड द टेररिस्ट एक्टिविटी। चुनाव के ठीक पहले आप जिस एरिया में दलित और पददलित एक्टिविस्ट जो कांग्रेस के हैं, जो आम आदमी पार्टी के हैं, बहुजन समाज के हैं, इन लोगों को आप जेल में डाल देते हो और एक पक्षीय चुनाव होता है। जैसे कि कोडिनार, तो कोडिनार में दिनुबोगा सोलंकी है, सामने महेश मकवाना करके एक एक्टिविस्ट ठहरा है जिनका प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने भी काफ़ी किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो आज गुत्सी टोक में 1 साल 2 महीने से जेल में है। उसका गुनाह क्या था? गुनाह यही था कि चुनाव के पहले जब डिमोलिशन चल रहा था सारे गुजरात में, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में भी जो एक्सेस कंस्ट्रक्शन थे उसको तोड़ा जाए और उसकी लड़ें, वहीं एफआरआई हुई, उसी के माध्यम से आज गुत्सी टोक के अंदर है। नाउ कैन दिस पीपल हु हैव कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस, हु आर प्रोमिनेंट लीडर आल्सो एफिलिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टीज, बी आइडेंटिफाइड एज लीडर of an organized crime by an organized crime syndicate? यानी विपक्ष को आप देशद्रोही कहें, ठीक है, लेकिन आप ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जो कानून बनाया गया है, उस कानून का उपयोग करके आप उनको जेल में डालें और चुनाव जीते, ये कौन सी लोकशाही है? वो आपातकाल को भूल जाइए। ये जो काल है वो आपात से बहुत ही बड़ा आपात है, इसलिए हमें इसको डील करना चाहिए। आरटीआई एक्टिविस्ट, आज कम से कम मैं 13 आरटीआई एक्टिविस्ट की मैटर दे रहा हूं, जिसमें 6 आरटीआई एक्टिविस्टों को मारा गया है, दे बीन किल्ड। बाकी के जितने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हाँ, आरटीआई का दुरुपयोग होता है, कुछ हद तक तो होता है। आरटीआई एक्टिविस्ट जैसे करते हैं, पुलिस और सरकार और ये रियल एस्टेट की लॉबी इकट्ठी हो जाती है और 3-4 एफआईआर हो जाती है। कहते हैं कि ये लोग हमसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसा उगलवाना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट इंफॉर्मेशन बट दे अल्टीमेटली इन द नेम ऑफ आरटीआई वांट मनी। तो सारे गुजरात के अंदर आज के दिन सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का ये प्रोग्राम चल रहा है। 42 आरटीआई एक्टिविस्ट जो जेन्युइन एक्टिविज्म में है वो जेल में है। क्या करेंगे? कौन से आपातकाल की बात कर रहे हैं? 50 साल पहले का तो आपातकाल बहुत अच्छा था। ये आपातकाल के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ऑपोजिशन तो है ही नहीं। हम जो कहने वाले जो लोकल लोग हैं, जो व्यक्तिगत तौर पे काम करते हैं, सामूहिक तौर पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ये हमारी खुद की परिस्थिति है। ये सरकार की, बीजेपी की, संघ की आपातकाल के बारे में मत सोचिए। आप और मैं, अबे हम इकट्ठे होके क्या करेंगे, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। गुजरात में 22 शुगर केन मिल है। मेरे मित्र आनंद भाई यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। 4 लाख आदिवासी मजदूर नहीं, आदिवासी फैमिली वहां पर काम करते हैं, जिनको कोयता कहते हैं। उसमें से आधे परप्रांतीय है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से आते हैं। इनके मिनिमम वेज का सवाल है। श्रीवास्तव जी यही है, सारी जिंदगी उन्होंने उसी के बारे में दी है ना। उनको मिनिमम वेज दिया जाता है। ये एक ही ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां मजदूर नहीं, मजदूर की पूरे फैमिली को, जिसमें पति, पत्नी और बच्चे होते हैं, ऐसा है। पति गन्ने को काटता है, पत्नी वो गन्ने इकट्ठा करती है, बच्चे उसको करके फिर ट्रक के अंदर रख जाते हैं। तो उनको 1000 टन गन्ना जब करते हैं तब 476 रुपये मिलते हैं। और आज 476 रुपये में से भी 83 रुपये वो मुलाजिम लेके चला जाता है। जो मिनिमम वेज आज 800 से 1000 रुपये प्रति टन होना चाहिए, इन लोगों के घर में 200 से 300 रुपये जाते हैं। 21वीं सदी में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की मीटिंग चल रही है, तब 4 लाख आदिवासी फैमिली दक्षिण गुजरात में 22 शुगर केन मिल में 27 लाख एकड़ ज़मीन में काम करते हैं। अब इनके बारे में रहने की सोचिएगा। हॉस्पिटल है इनके लिए? नहीं। घर है? नहीं। बच्चों को पढ़ने की कोई व्यवस्था है? नहीं है।
और औरतों के लिए कोई व्यवस्था है? नहीं है, न पढ़ने की, न हॉस्पिटल की, न रहने की, न शिक्षा की, न बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी ये गुजरात में, मॉडल तो छोड़िए क्योंकि मॉडल में ये बातें आती नहीं है, लेकिन हमें इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। ये डेमोक्रेसी है, हाई कोर्ट में लड़ा जाता है और हाई कोर्ट के अंदर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल होते हैं। प्रशांत जी जानते हैं, हर 5 साल मिनिमम वेजेस रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन 2015 और 14 का होता है, वो 2025 में होता है, तब तक दाम तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। श्रीवास्तव जी बात सही है ना? फॉरेस्ट राइट की बात करें तो आज 2013 से 2025 के बीच में गुजरात में आज भी ऐसे 78,000 से 1,09,000 आदिवासी हैं जिनकी फॉरेस्ट राइट की एप्लीकेशन पेंडिंग है, और 1,50,000 से ज़्यादा आदिवासियों को जंगल जमीन में खेती करने का मौका मिला है, सनद मिली है, फिर भी उनको नहीं करने दे रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मारती है, महीनों तक वो आदिवासी औरतें और आदिवासी वो सनद लेके जेल में जाते हैं। जब पुलिस उनके सामने आती है, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आते हैं तो उन्होंने कहते हैं सर मेरे पास तो सनद है, आई हैव अ राइट टू कल्टिवेट दिस फॉरेस्ट लैंड। वो सनद को ऐसे फाड़ के पिटाई करके लेके जाते हैं, कहते हैं दिस इज अ कोर जोन। ये हो रहा है गुजरात में, और ये डेमोक्रेसी के अंदर वो छोटा सा गांव अहमदाबाद से 450 किलोमीटर दूर डांग में या व्यारा में, वहाँ से 75-70 किलोमीटर आप जाएंगे, वहाँ से 8 किलोमीटर चल के आप उस जंगल में जाएंगे, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा और वो आदिवासी फैमिली होंगे। हर साल घर जलाए जाते हैं, हर साल मारा जाता है, हर साल उनको जेल में जाना पड़ता है, और ये सनद का क्या होता है ये तो शायद मुझे नहीं पता है। अभी बात करें, कुछ दिनों पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ये 3,000 एकड़ ज़मीन आप सीमेंट कंपनी को दे रहे हैं, इसका मतलब कि पूरा इलाका दे रहे हैं। उसके बारे में कई लोगों ने स्टोरी की, अभिसार शर्मा और राजू परोलेकर ने भी स्टोरी की। दोनों के सामने डेफेमेशन के केस हो गए हैं गुजरात के गांधीनगर में। इनके अलावा इनको शामिल करने के बाद सीडेशन के केस हो गए हैं वहाँ आसाम में, और बाकी परंजय गुहा ठाकुरदास से लेके बाकी के लोगों के केस में वहाँ दिल्ली में केस हो गए। आप देखिएगा कि हेमंत कुमार विश्व शर्मा सीडेशन करता है, यहाँ पे अदानी ग्रुप डेफेमेशन करता है, वहाँ पे अदानी ग्रुप क्या करता है, और कहते क्या हैं अपनी पिटीशन के अंदर कि हम तो भारत के विकास की बुनियाद है, और एज अ कंप्लेनेंट दिस इज व्हाट दे से, वी आर द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट, लीव असाइड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, वी आर द फाउंडेशन ऑफ the development in India, and this foundation is sought to be destabilized by so-called journalists. और कोर्ट बुलाती रहती है सारी ज़िंदगी, unless the cases come to an end, ये आते रहेंगे, जैसे परंजय गुहा ठाकुरदास था। छोटी मोटी ऐसी बातें हैं, कोर्ट में हर रोज़ जाते हैं, हर रोज़ वापस आते हैं। चंडोला तालाब के बारे में भी आप सबको पता है, 14,000 घर तोड़े गए, 550 मुसलमानों को ज़बरदस्ती से बांग्लादेशी कह के यहाँ से बांग्लादेश में छोड़ दिया गया। 3,500 लोगों की एप्लीकेशन स्वीकार की, बाकी 9,000 लोगों जिनके घर टूटे, जो 40-50 साल से रह रहे थे लेकिन कागज नहीं थे उनके पास। मेरे पास भी, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मैं पैदा हुआ था दिल्ली में, मेरे पास भी वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो अब ये इंटेंसिव जब रिवीजन होगा तब मैं क्या बताऊंगा, मुझे भी नहीं पता। इसलिए ये डिमोलिशन है, ये डेसिक्रेशन है, ये कास्टिगेशन है, ये मार्जिनलाइजेशन है, ये परसिक्यूशन है। कल आए थे मेरी ऑफिस में वो 4 बच्चे जिनको बड़ौदा में गणेश की वो जो प्रोसेशन जा रहा था, वो रात को 3 बजे अंडे डाले
उन्होंने बताया कि सर अंडे डालने का छोड़ो, हम तो उस जगह पे थे नहीं, सो रहे थे, और कैसे उस मुसलमानों को गैंग जाहिर किया, पूरा बांध के 6 किलोमीटर रिक्रिएशन के नाम पे चलाया गया। 6 दिन तक मारते रहे, कन्फेशन करवा लिया कि इन्होंने अंडे तो हमने ही डाले। और इस तरह हमारे होम मिनिस्टर कहते रहेंगे गुजरात के नवरात्रि में या फिर गणेश के त्यौहार पर, अगर कोई भगवान के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून उसके साथ काम करेगा। अब ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए है गुजरात में या सबके लिए है? ये लोकशाही है, इसके बारे में सोचना है। जय हिंद।